welcome back to Mansi's Knowledge Hub. Here I am with part 3 for science session, and I hope you all have watched my previous videos. This science session is on class 10th chapter 1, that is chemical reactions and equations. I hope you all have watched my previous videos, and अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है then I will be mentioning the link in the description box. Just go and visit them, and उसके बाद यहाँ पर आप part 3 देखने आओ because I am continuing from there only. And हाँ जी, जो भी मेरी videos वहाँ पर देखेंगे, don't forget to like, share, subscribe and also follow me on Insta. So let's start today's session. The topic that we are continuing is the types of chemical reaction. मैंने आपको previous classes में chemical reaction, chemical equations इन दोनों के बारे में बताया था. Today we are discussing further about chemical reactions. We are discussing about chemical reactions. Actually इनको chemical equations में convert करना ही पड़ता है. So our first one is combination reaction. Mainly ये 5 types की reactions हैं हमारी. We are going to discuss one by one each and every. First one is combination. Second one is decomposition reactions. अभी जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे then we will see that these both are opposite of each other. कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है that why combination and decomposition reactions are opposite of each other. I will be explaining this. इसके बाद next is displacement reaction, and then fourth one is double displacement reactions, and at last we are having oxidation and reduction reactions. Okay, one by one we will go to each and every reactions. अभी आप इन 5 reactions को एक बार नोट डाउन कर लो. After that we will start with our first, that is combination reaction, and also we will be discussing the examples ताकि आपको अच्छे से ये topic clear हो जाए. Let's start our first reaction, that is combination reaction. Now as the name suggests, in combination reaction 2 or more substances combine to form a single substance. Now the substances which are being combined, जैसे मैंने बोला 2 or more substances combined, these substances are the reactants जो combine करके एक particular substance बनाएंगे and that will be the product. तो इसी को हम combination reaction बोलते हैं. जैसे देखो मैं आपको example दे रही हूँ of our combination reaction. In combination reaction 2 or more substances are combining. जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. इट इज बीइंग combined with the oxygen gas to form कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म. दिस इज अनबैलेंस्ड. तो देखो एज द नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन, 2 रिएक्टेंट्स से इन्होंने कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज डीकम्पोजिशन. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो हमारे कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वी से दैट दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. व्हाई? तो अभी आई एम एक्सप्लेनिंग यू डीकम्पोजिशन. आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. देखो इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन एज द नेम सजेस्ट, वन पर्टिकुलर कंपाउंड इट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस. एक कंपाउंड जो होगा इसकी स्प्लिटिंग होगी, ये ब्रेक डाउन होगा. डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है? दैट अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सो जस्ट लाइक दैट इसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा और 2 या 2 से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज करो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा रिबन वाला था ना, बर्निंग ऑफ रिबन इन दी मैग्नीशियम रिबन इन द एयर. तो इसमें हमें मैग्नीशियम और O2 मिलेंगे. ठीक है, अगेन दिस इज अनबैलेंस्ड. मैं कर देती हूँ. ओके, ये मैंने स्टेट्स लिख दी.
तो 2 mgO 2 mg, अब ये बैलेंस है, ठीक है। तो देखो इसमें आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस था, इट स्प्लिट्स, ये दो सब्सटेंसेस में सिंप्लीफाई हो गया, कन्वर्ट हो गया, मतलब दो सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब यू कैन सी कॉम्बिनेशन में इसका रिवर्स हो रहा है, इसमें दे आर कंबाइनिंग, टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, बट इन डीकम्पोजिशन वन कंपाउंड इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी वजह से हम इनको अपोजिट ऑफ ईच अदर बोलते हैं। आफ्टर दिस जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मेनली दिस इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस in the presence of heat, then that reaction is known as thermal reaction. अगर ये decomposition heat की presence में हो रहा है तो thermal decomposition होगा, अगर electricity की presence में हो रहा है then this will be known as electrolysis. This process will be known as electrolysis. And the third type will be if the reaction is taking place in the presence of light, तो इसको बोलते हैं, ये हमारे फोटोलाइटिक रिएक्शन होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड फोटो, दिस मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू लाइट, फोटो वर्ड्स इज रिलेटेड टू लाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस टू टेक प्लेस, जस्ट लाइक दैट फोटोलाइटिक रिएक्शन नीड्स लाइट एनर्जी। Now let us see the examples for all these 3 types ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। So the first one that is thermal decomposition। देखो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। आई होप यू ऑल नो इट्स नेम, इसका कॉमन नेम बता सकता है कोई? इफ़ यू नो देन डू कमेंट, इस वीडियो को भी पॉज करके कमेंट करो, बाकी आई एम टेलिंग यू इट इज़ लाइमस्टोन। Whenever we will do decomposition in the presence of heat, यहाँ पर हम decomposition कर रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, तो हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? वन वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, एंड अनदर वन विल बी CO2 गैस, दिस यू नो कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड विल बी इन द सॉलिड फॉर्म एंड ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। आपको इन सब की एक एक एग्जाम्पल याद होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, टेल अस द डिकम्पोजिशन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। हम अपनी कॉमन सॉल्ट का करवा रहे हैं, तो इसमें भी हमें Na और Cl2 मिलेगा, क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल मिलेगा सॉलिड, एंड दिस सोडियम क्लोराइड दिस वाज आल्सो इन द सॉलिड फॉर्म। हमारी जो सॉल्ट होती है, ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 सो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल था। नाउ अवर लास्ट टाइप दैट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन, जो लाइट की प्रेजेंस में होगा। अब हम अगर इसमें देखें तो जैसे देखो जो सिल्वर का डिकम्पोजिशन होता है ना, ये जनरली आप यहाँ पे लिख लेना, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये हमारा लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है डिकम्पोजिशन। जो हमारे सिल्वर के डिकम्पोजिशन होता है वो जनरली लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। तो अगेन वी विल गेट द प्रोडक्ट 2Ag which is again solid, and this silver chloride was also in solid form, plus chlorine gas. So these 3 are the examples of all the 3 types and you should know them, at least इनको तो learn कर ही लेना। मैंने बहुत simple आपको examples दिए हैं ताकि it will become easy for you to learn. Let's come to our third type of reaction, that is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी नेम से ही मीनिंग थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, बाकी मैं बता देती हूँ। देखो इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, these are the reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक हमारा more reactive metal है, ठीक है, और एक हमारा less reactive metal की salt है, उसका salt solution है, ये याद रखना, it is very necessary to mention the salt solution। तो ये more reactive metal आया
और इस ये जैसे ही लेस रिएक्टिव वाले सॉल्ट सॉल्यूशन के पास पहुंचा तो इसने क्या करा, जो लेस रिएक्टिव वाला मेटल था उसको उसकी प्लेस से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट इट केम टू इट्स प्लेस और उसके साथ सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। ये फिलिप्स की फॉर्म में या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिर ऐसे इनकम्प्लीट फॉर्म में आ जाते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो अगर आपको कभी एग्जाम्पल मिल गया हो जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल दे रखा है और मोर रिएक्टिव मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखा है तो वहाँ पे नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सपोज करो इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, यू आर हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्ट एंड जिंक मेटल केम, ठीक है। तो इसका रिएक्शन होगा यू विल गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड, यहाँ पर ये सॉलिड, ये एक्वस सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया और ये भी एक्वस सॉल्यूशन था, ठीक है। अब सपोज करो इफ यू हैव क्वेश्चन लाइक दिस दैट ZnSO4 प्लस Cu, व्हाट विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा देन यू विल से नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द फोर्थ टाइप दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो लाइक डिस्प्लेसमेंट बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो लेट मी क्लैरिफाई दैट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो इसमें क्या होता है बेटा, वेन एवर देयर आर टू कंपाउंड्स इन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है, दे एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ आई होप यू ऑल नो दैट हमारी जो एक सॉल्ट होती है वो केटाइन एंड एनायन से मिलके बनती है, मीन्स वन केटाइन एंड वन एनायन इट कंबाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट कंपाउंड की सॉल्ट होती है उसका जो केटायन है इट रिएक्ट्स विद सेकेंड सॉल्ट्स एनायन, सेकेंड सॉल्ट का जो अनायन होगा उसके साथ कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड बनाएगी। एंड सिमिलरली जो सेकेंड सॉल्ट का केटायन है वो फर्स्ट सॉल्ट के एनायन के साथ कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड बना देगी। तो मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयंस हैज़ टेकन प्लेस। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, देखो AgNO3, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, इट कंबाइंड विद अगेन NaCl, अवर कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो क्या बन गया, अब देखो इसका ये केटायन है और ये एनायन है, इसका ये केटायन है एंड ये एनायन है। तो Ag विल कंबाइन विद Cl, सो यहाँ पर बन जाएगा AgCl एंड दिस Na विल कंबाइन विद नाइट्रेट आयन। आई होप आपको पता होगा कि हम जब भी सॉल्ट लिखते हैं तो पहले केटायन लिखते हैं देन एनायन लिखते हैं। सो दीज टू न्यू कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जस्ट रिमेंबर इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन सॉल्ट एंड वहाँ पर क्या होगा, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। वहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यहाँ पर इट डजंट मैटर कि हमारी वो मोर रिएक्टिव वाली मेटल वाली सॉल्ट है या लेस रिएक्टिव मेटल वाली सॉल्ट है, इसमें क्या होगा डायरेक्टली बस आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी एंड इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let's come to our fifth type and the last type that is oxidation and reduction reaction. एक तो ये जो हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दे विल ऑलवेज बी टुगेदर, हमेशा इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो साथ में रहता है, ठीक है। अगर एक हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है देन इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन ओनली रिडक्शन भी होगा। अब कुछ पॉइंट्स है इसके लिए जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। देखो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, देखो इन अ रिएक्शन इफ़ देयर इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम then that particular reaction is oxidation reaction. मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेशन। if there is addition of oxygen or removal of hydrogen, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो रही होगी then that is oxidation reaction.
इसके बाद रिडक्शन क्या होता है हमारा, इसका रिवर्स, इफ देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म्स का पता होना चाहिए, दूसरा हमसे ये भी पूछा जाता है कि विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं इनके बारे में भी डिटेल देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, देखो, इन द रिएक्शन द सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एंड इन द सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। मैं अभी इनके एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा एक्चुअली में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O। ओके, आई एम नॉट मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स हियर, मैं अभी डायरेक्टली क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा रही हूँ, सो लेट्स फोकस ऑन दैट टॉपिक। अब आप इसमें देखो, एज यू नो, एक बात रिमेंबर, वन मोर थिंग, दैट जो भी हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं। इनका जब भी आपसे आंसर मांगेंगे देन द आंसर विल बी ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्या रह गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये जो हमारे 4 होंगे, इनका आंसर आपका रिएक्टेंट्स में से ही कुछ होगा, कभी भी प्रोडक्ट कोई भी आंसर में नहीं आएगा, तो इस बात को बहुत ध्यान से करना। नाउ सी, इफ़ यू विल सी, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारा बाद में कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा, इसमें रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का मैंने लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तब भी हमारा रिडक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्टेंट पे आ जाते हैं। जो हमारा H2 है, ये H2O बन रहा है, तो इसमें एडिशन हो रहा है ऑफ ऑक्सीजन ओनली, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। ये हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बन गया। अब आप एक बात देखो, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आप एक और बात देखोगे बेटा, देखो यहाँ पर ये जो हमारा O है, बाद में इसके पास H2 आ रहा है ना, अभी Cu था, रिमूव होके इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन हमारा रिडक्शन। अब देखो, यहीं से मैं आपको इन चारों के नेम्स बताऊंगी कि कौन सा हमारा क्या है। अब देखो, एज यू नो, ये तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो हमने डायरेक्टली लिख लिया। इफ दे विल पूछेंगे, दे विल आस्क दैट विच सब्सटेंस, इन विच सब्सटेंस रिडक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। इफ दे विल आस्क इन विच सब्सटेंस ऑक्सीडेशन इज बीइंग टेकन प्लेस, तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, क्योंकि इसी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, इसको बहुत केयरफुली करना है। मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसमें खुद रिडक्शन हो रहा है, तो इन दोनों में से रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। सो दिस मीन्स इफ वी विल एनालाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड दे विल से विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका आंसर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। क्यों हुआ, आई होप यू आर गेटिंग मी, बिकॉज इसके अंदर खुद रिडक्शन हो रहा है। और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसमें खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो द आंसर विल बी H2। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। सो आपको इस तरीके से इनके आंसर देने हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। Now let's start with the last topic of this chapter, that is effect of oxidation reaction in our daily life.
सो एज़ यू ऑल नो कि ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत सारे हमारे मेटल्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, और हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं मेनली इन दोनों पे ही अटैक होता है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन की वजह से मेनली 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं हमारे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके जो इफ़ेक्ट्स अगर हम पढ़ेंगे अवर डेली लाइफ में तो 2 मेन हैं, दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। कोरोजन इज़ रिलेटेड टू मेटल्स एंड रेंसिडिटी इज़ रिलेटेड टू फूड। सो व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस तो ये मेनली इन 2 चीज़ों पे ही अटैक करती है। सबसे पहले हम कोरोजन की बात करते हैं। ईटिंग अप ऑफ अ मेटल, हम यही बोलते हैं दिस इज़ कोरोजन। नाउ इसमें होता है कि एक्चुअली द मेटल्स आर बीइंग अटैक्ड बाय द मॉइस्चर, एयर, ये जो कंटेंट होते हैं इनकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। मेनली इनमें ऑक्सीडेशन क्रिएट करते हैं ये मेटल के अंदर, और इसकी वजह से हमारा मेटल जो है वो कोरोड हो जाता है। आपने एक बहुत फेमिलियर एग्जांपल सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सो ये एक्चुअली में जब कोरोजन होगा दिस वीकेंस द मेटल, ये मेटल की जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करता रहता है, कम कर देता है और बहुत वीक बना देता है। तो इसके लिए इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग। आई होप आपने ये सब टॉपिक्स पढ़े होंगे इन स्टैंडर्ड 7th 8th, इसमें उसमें बताए जाते हैं कि हम अपने मेटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। नाउ द रेंसिडिटी, दिस इज रिलेटेड टू फूड। इसमें क्या होता है जो हमारा एरियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हवा की प्रेजेंस में जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा वो फूड के ऊपर होता है। तो आपने देखा होगा जनरली जब हम हमारा ये ह्यूमिड टेम्परेचर होता है तब हमारी जो चीज़ें होती है घर में वो सिल जाती हैं, तो एक्चुअली वो ऑक्सीडाइज हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे फूड मटेरियल होते हैं स्पेशली इनको ये सब फेस करना पड़ता है। हम इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने फूड मटेरियल को टाइट एयर टाइट जार कंटेनर में उसको उसमें स्टोर करके रखेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखते हो तो चिप्स जो आप खाते हो उसके अंदर दे आर इन्फ्लेटेड विद द नाइट्रोजन गैस, उनको नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया जाता है। तो ये हमारा एक प्रोटेक्टर की तरह काम करती है और हमारा जो फूड होता है उसको रेंसिडिटी से बचाती है। एक्चुअली व्हेन यू विल नो दैट द फूड इज रेंसिड, व्हेन यू विल सी दैट द टेस्ट ऑफ फूड इज अनप्लीजेंट, या फिर उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, then it is means assured, you are sure that the food is rancid। उस टाइम पे रैंसिडिटी होती है। तो आप इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप फूड को स्टोर करके रखो रेफ्रिजरेटर में, तब भी जो आपका फूड है वो स्पॉइल नहीं होगा। सो ये हमारा चैप्टर था। यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड पे अपने इस चैप्टर की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप यू ऑल लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल बी वेटिंग। आप कुछ भी पूछो एंड लेट्स मीट with another video with new topic and let's see, वो सस्पेंस है कि मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखूँगी। I hope you all will like my video, do share it with your friends and family members and don't forget to subscribe my channel and also click on the bell icon and follow me on Instagram. I will be mentioning all my links in the description box. Go and visit them those who haven't, and I am looking forward for your love this time. So see you soon with my new video. Till then, take care, stay safe, good luck.